کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس بریکنگ نیوز سے۔ آپ کو بتائیں کہ حیات آباد میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن میں اب تک 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا جا چکا ہے۔ عمارت میں اب بھی 1 یا 2 دہشت گرد موجود ہیں۔ فیز 7 میں واقع 3 منزلہ عمارت کے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ آپریشن میں پولیس کا سب انسپیکٹر شہید جبکہ ایک اہلکار زخمی ہوا ہے۔ نمائندہ نیونس جمیل خان اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں، مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ جی بتائیے گا ابھی کیا ڈیٹیلز ہے ریسکیو آپریشن کی، اور ابھی تک عمارت میں 1 یا 2 دہشت گرد موجود ہونے کی اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، حیات آباد کے علاقے فیز 7 میں مکان میں چھپے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تاحال جاری، اور پولیس ذرائع نے دعویٰ کیا کہ 5 دہشت گردوں کو اب تک ہلاک کیا جا چکا ہے، جبکہ 1 سے 2 دہشت گرد کی موجودگی کی اطلاعات ابھی آ رہی ہے۔ ابھی بھی تقریباً 2-3 منٹ پہلے ہی 4-5 دھماکوں کی آوازیں اندر سے آئی ہے اور فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن آپریشن جو ہے ابھی تک کلیئر نہیں کیا جا سکا، اور یہاں پہ آپریشن میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں اور آپریشن جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہے۔ اور اس وقت میں موجود ہوں حیات آباد کے، یہاں میں بڑی تعداد میں نہ صرف پولیس اہلکار موجود ہے بلکہ ساتھ ساتھ پاک فوج کے آپریشن جو جوان ہے وہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ٹریفک اہلکار بھی موجود ہے، جو قریبی علاقہ ہے تو وہاں پہ مکانات کو خالی کرایا گیا ہے، لیکن ابھی تک جو علاقہ ہے یہاں پہ جو مکان ہے یہ کرائے کا مکان ہے، اور تقریباً 15 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ ابھی تک آپریشن مکمل طور پر کلیئر نہیں کیا جا سکا، اور 2 سے 1 دہشت گرد جو ہے یہاں پہ موجودگی کی اطلاعات ہے، کیونکہ اندر سے دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہے، اور 3 سے 4 دھماکے کی ابھی بھی تقریباً 3-4 منٹ پہلے ہی ہو چکے ہیں، اور مسلسل دھماکوں کی آوازیں اندر سے آ رہی ہے۔ اور پولیس کی جانب سے اور پاک فوج کی جانب سے جو جوان ہیں ان کی جانب سے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا سکے، لیکن ابھی تک اطلاعات آ رہی ہے کہ یا 1 دہشت گرد یا 2 اندر موجود ہے، کیونکہ ابھی بھی دھماکوں اور فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہاں پہ جو پاک فوج کے جوان ہیں تو آپریشن میں مصروف ہے، اور ساتھ ساتھ پولیس اہلکار بھی ابھی تقریباً چند منٹ پہلے ہی خیبر پختونخوا کے IG پولیس نے خود آپریشن کی نگرانی کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے، اور ان کے جو پولیس اہلکار ہے تو ان کے مطابق آپریشن تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور 5 دہشت گرد جو ہے پولیس ذرائع دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک علاقہ جو ہے کلیئر نہیں کیا جا سکا۔ یہاں پہ جو ہے یہ مکان کرائے کا مکان ہے، پر اس کا جو مالک ہے تو وہ بیرونی ملک مقیم ہے، اور یہاں تک چند مہینے پہلے اس کو کرائے پہ دیا گیا تھا مکان کو، لیکن تقریباً 15 گھنٹے قبل یہاں پہ پولیس کو اطلاع ملی کہ دہشت گرد یہاں پہ موجود ہے۔ انہوں نے آپریشن کا فیصلہ کیا یہاں، لیکن چونکہ دہشت گردوں نے بڑی تعداد میں جو ہے اسلحہ اپنے ساتھ لایا، اور لگتا ہے کہ اسلحہ جو ان کے وہ یہاں سے پہلے ہی سٹاک موجود ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے فائرنگ بھی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ جو دھماکے ہیں تو وہ بھی ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ ہینڈ گرینیڈ کے ہی دھماکے تاکہ جو آپریشن ہے اس میں خلل ڈالا جا سکے، لیکن آپریشن جو ہے جاری ہے، اور پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جو جوان ہیں تو وہ لگے ہوئے ہیں۔ ہر صورت کو ان کی کوشش ہے کہ دہشت گرد، اور پولیس ذرائع تو دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ جو بیسمنٹ ہے تو ان کو کلیئر کیا جا چکا ہے، جو فرسٹ فلور ہے تو لگتا ہے کہ دہشت گرد، کیونکہ 3 منزلہ مکان ہے بیسمنٹ کے ساتھ جو ہے اوپر پہنچ چکے ہیں دہشت گرد، وہاں سے جو ہے پولیس پہ اور پاک فوج کے جوانوں پہ فائرنگ کر رہی ہے اور دھماکے بھی کرا رہے ہیں دہشت گرد، لیکن پولیس جو ہے اور پاک فوج کے جوان تو ان کو یہی کوشش ہے کہ تمام دہشت گردوں کو یا تو ہلاک کیا جا سکے، کیونکہ ان کا پکڑنا جو ہے انتہائی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ ارد گرد جو ہے بڑی تعداد میں آبادی بھی رہائش پذیر ہے، اور پولیس کی جانب سے کوشش جاری ہے کہ کوئی ایسی فائرنگ نہ کرے جس سے مقامی آبادی جو ہے وہ متاثر ہو سکے، لیکن ابھی تک جو ہے علاقہ کلیئر نہ ہو سکا، اور فائرنگ کا سلسلہ دھماکوں کے ساتھ ساتھ جاری ہے پولیس کی جانب سے، اور پاک فوج کے جوان جو ہے وہ لگے ہیں، اور ہر صورت پر اس کی کوشش ہے کہ علاقہ جلد از جلد کلیئر کیا جا سکے، لیکن تقریباً 15 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ ابھی تک ان 15 گھنٹوں میں 5 دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ پولیس کی جانب سے سامنے آیا ہے، لیکن کہتے ہیں پولیس کے ابھی بھی 1 یا 2 دہشت گرد موجود ہے جو اندر سے کارروائیاں کر رہی ہے، اور نہ صرف پاک فوج اور پولیس پہ فائرنگ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے بلکہ ساتھ ساتھ دھماکے بھی کر رہی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اسلحہ اب بھی موجود ہے اور ابھی بھی دہشت گرد جو ہے اندر موجود ہے۔ جی بہت شکریہ جمیل، ابھی تک کی تفصیلات آپ نے دی، آپ سے مزید ڈیٹیلز بھی لیں گے اس آپریشن کے حوالے سے۔
एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग केस की साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर एहतसाब अदालत पहुंच गए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक केस की समाअत करेंगे। अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एक दफा फिर आपको इस खबर के हवाले से यहाँ पर बताते चलें कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक केस की समाअत करेंगे। अदालत के अंदर बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हनीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हनीफ खान, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत आज होगी। जज अरशद मलिक केस की समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर रहे हैं पाकिस्तान के, उन समेत 30 मुलजिमान को जो है आज तलब कर रखा है। इस वक्त आसिफ अली जरदारी कमरे अदालत में मौजूद है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। 1500 से ज़ायद अहलकार जो इस्लामाबाद पुलिस के वो तैनात है। रेंजर के दस्ते भी मौजूद है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो 200 से ज़्यादा एहलकार जो वो रखे गए हैं, इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। केस की समाअत कुछ ही देर में शुरू होगी। आसिफ अली जरदारी कमरे अदालत में मौजूद है। जज अरशद मलिक केस की समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हनीफ खान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अंदरून सिंध में तेज आंधी के साथ तूफानी बारिश, कई मकामात पर यालाबारी भी हुई। लाहौर में तेज आंधी से हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया। जनूबी पंजाब के बेशतर इस्लाह में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात, पंजाब, इस्लामाबाद, कोयटा, योब डिवीजन, कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि सक्खर, लाड़काना डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बास मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ तूफानी बारिश, कई मकामात पर यालाबारी। पंजाब में मुल्तान, खानेवाल, हासिलपुर और दुनियापुर में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। लाहौर, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, डेरा गाजी खान, लोधरा, बिहाड़ी, साहिवाल समेत दीगर शहरों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और अंदरून सिंध में भी तेज आंधी के साथ बाज़ इलाकों में तूफानी बारिश। कराची में गर्द आलूद हवाओं से तबाही, जबकि हैदराबाद, मीरपुर खास में आंधी का तूफान आया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात, पंजाब, इस्लामाबाद, कोयटा, योब डिवीजन, कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि सक्खर, लाड़काना डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और बास मकामात पर यालाबारी की पेशगोई की है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तेज आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में दीवारें गिरने और दीगर हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। तेज आंधी से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के खंभे भी जद में आ गए और जमीन बोस हो गए। फीडर स्ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाके तारीकी में डूब गए, जबकि आंधी और यालाबारी से गंदुम समेत दीगर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मूसलाधार बारिश से टांग और कर के नदी नालों में तोखयानी आ गई, जबकि जबाकंद कोट में मिट्टी के तूफान ने हर मंजर धुंधला दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अंदरून सिंध में तेज आंधी और तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ वाक़यात में 21 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी हो गए। लाहौर के शादबाग में दीवार की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, जबकि काना काचा में कमरे की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। शहर में तेज आंधी के बायस 150 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप करने से मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। कानेवाल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से छतें और दीवारें गिरने से 4 अफराद मलबे तले दबकर जाने गंवा बैठे। हासिलपुर में फैक्ट्री की दीवार गिरने से 3 मजदूर जान से हाथ धो बैठे।
दुनियापुर में शदीद आंधी से बिजली का तार टूट गया। सदमे आकर एक शख्स दम तोड़ गया। मुल्तान, डेरा गाजी खान, टोबा टेक सिंह, दीपालपुर, लोधरा, विहाड़ी, साहिवाल समेत दीगर शहरों में भी आंधी और मूसलाधार बारिश। दरख्त उखड़ गए, खंबे गिर गए, बिजली गायब, गंदुम समेत दीगर फसलें भी तबाह हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश से टांक और कर्क के नदी नाले बिफर गए। ठट्ठा में तेज हवाओं से कच्चे घरों की छतें गिर गईं। कैटी बंदर में लांच डूब गई। 20 माहीगीरों को बचा लिया गया। कंदकोट में मट्टी के तूफान ने हर मंजर धुंधला दिया। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग के बायस मकान गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जबकि बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में तूफानी बारिश है। बोलान में कच्चे मकानों की छतें गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। सूबे में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 30 से जायद जख्मी हुए। सूबे के शुमाली इलाकों में शदीद बारिशों से सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। बलूचिस्तान में बारिशों से क्या नुकसानात हुए, नुमाइंदा न्यूज़ आजम उल्फत हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के अलावा खुजदार, कलात, सूराब और मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक कोयटा में 30 मिलीमीटर जबकि 110 मिलीमीटर जीवनी में बारिश रिकॉर्ड की गई है। मैं आपको बताता चलूं कि तूफ़ानी बारिशों के बायस सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदम हो चुके हैं और अब तक बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात वाक़यात में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 31 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में कोयटा समेत बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में मज़ीद बारिशों की पेशनगोई की है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोयटा में शदीद बारिशों के बायस गटर का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा है। सफाई की नाकिस सूरत हाल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरियों को पैदल चलना महाल हो गया है क्योंकि सारा सीवरेज का पानी जो है ना, सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने की वजह से सारा पानी सड़कों पे बह रहा है जिससे पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। और राजनपुर की तहसील जामपुर में सैलाबी रेला तबाही मचा रहा है। दर्रा का हिस्तान सुल्तान 71,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजरा जिससे कई देहात में पानी दाखिल हो गया। ज़मीनी राबिते मुनक़ता हो गए। नशेबी इलाकों में गंदुम समेत दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले में काटी गई फसल के गुट्ठे बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्क भर में होने वाले बारिशों की वजह से फलों के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। जनूबी पंजाब में आंधी और बारिश से आम के दरख्तों पर लगे बोर झड़ने लगे और इससे आम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलें कि मुल्क भर में होने वाले बारिशों की वजह से फलों के बागात को शदीद नुकसान पहुँचा। जनूबी पंजाब में आंधी और बारिश से आम के दरख्तों पर लगे बोर झड़ने लगे हैं और आम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद बताएंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है वो रात भर तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहा है और इसके साथ साथ आंधी जो है वो भी मुल्तान के अंदर आई है, जिसके बाद जो है वो बारिश के बाद मौसम तो मुल्तान का खुशगवार हो चुका है, लेकिन जो आम के बागात हैं उनको भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है क्योंकि आंधी की वजह से जो मुल्तान के अंदर वसी पैमाने पर बल्कि जनूबी पंजाब के अंदर जो है आम के बागात मौजूद हैं, उनके ऊपर जो बूर था वो भी इन प्रोसेस था, जिसके बाद जो है जब तेज़ आंधी आई तो वो बूर जो है वो गिर चुका है और उसके बाद पौधे की फ़ीमन एकड़ पैदावार भी मुतासर हुई है। तो इस हवाले से जो बाग के माली हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये जो आंधी आई है ना, एक पौधे में तकरीबन 30 मन पैदावार थी, उम्मीद थी, और आंधी की वजह से तकरीबन 5 से 7 मन वो गिर गई है पैदावार। अब ये बहुत नुकसान है हमारे लिए। जनूबी पंजाब के जो दीगर अजला की बात की जाए जैसे खानेवाल, विहाड़ी, आरिफ वाला, कबीर वाला, इन इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई है। तो जिन इलाकों में ज़ालाबारी हुई है वहाँ पे आम के जो बागात हैं वो तकरीबन वो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे बूर जो है वो इन प्रोसेस था वो भी ख़त्म हो चुका है और उसके बाद जो नए आम थे वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं।
मुल्क भर की बारिशों से सैलाबी सूरत हाल की अपडेट्स आपने जानी, आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज जहां इजलास होगा, 17 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में चेयरमैन ओगरा और अथॉरिटी के मेंबरान की तनख्वाह के हवाले से काबीना के फैसले पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यून शहबाज अहमद से। जी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। 17 नुकाती एजेंडे आज पर गौर होगा इस इजलास में। जी बिल्कुल फरोज, आपने दुरुस्त कहा कि 17 नुकाती एजेंडा जो है वो कैबिनेट इजलास का जारी किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वफाकी काबीना जो एमनेस्टी स्कीम है उसकी मंजूरी देगी। उसके अलावा जो वजारत और डिवीजन में नई तैनाती के हवाले से रिक्रूटमेंट टेस्टिंग एजेंसी के जो तरीकाकार है उस मुताबिक अपने फैसले का जायजा लिया जाएगा। उसके अलावा एक बड़ी अहम ये चीज है कि वफाकी काबीना को आज वज़ारत तालीम जो है मुल्क भर में यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से तजावीज़ देगी और इसके हवाले से इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी देगी। और जो एक मुजरिम है नुमान हनीफ दुबई के, उनको जो हुकूमत के हवाले करने के हवाले से भी जो है मंजूरी दी जाएगी। उसके अलावा वफाकी काबीना जो है इस सीजन के लिए गंदम खरीदारी की मंजूरी देगी और जो मुल्क में जो मतरूका वफामलात की जो जायदादें पड़ी हैं उसकी प्रोफ का जायजा लिया जाएगा। और वज़ारत दिफाई पैदावार की जानिब से एक समरी जो आई थी उसकी कानूनी और आईनी हिदायत देने का भी जायजा लिया जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान बोस्निया के दरमियान जो ज्वाइंट इकनॉमिक कमीशन है उसके क्याम के पेश की फैसले की मंजूरी देगी। तो 17 नुकाती कुल एजेंडा है। 11:30 बजे इजलास होगा। इसके अलावा वफाकी काबीना जो है CCI के गुज़श्ता इजलास फैसलों की तौसीक करेगी और काबीना इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और ज़्यादा इमरान खान जो है वज़ारतों की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने अभी तक की तफसीलात दी। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी फाइनेंस को तलब कर लिया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी ज़ाती हैसियत में तलब। तामीराती कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव को भी अगली समाअत पर तलब कर लिया गया। अदालत ने नए प्रोसिक्यूशन टीम के नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबे पर काम नहीं होगा तो मामला नैब को भेजा जा सकता है। नैब लाहौर में आज हमजा शहबाज की एक और पेशी। नैब जराये के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में सवालात के जवाब न देने पर नैब ने आज दोबारा तलब कर रखा है। हमजा शहबाज से गुज़िश्ता पेशी पर 8 सवालात पूछे गए, जबकि नैब ने हमजा शहबाज से वालिदा की जानिब से फन करेंसी की सूरत में वसूल होने वाली रिकॉर्ड भी तलब किया और नैब ने सालाना बुनियादों पर की जाने वाली सरमायाकारी का रिकॉर्ड भी तलब किया। अपडेट कर रहे हैं आपको नैब लाहौर में हमजा शहबाज की एक और पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में नैब ने आज दोबारा तलब कर रखा है। आपको बताएं कि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मिफ्ता इस्माइल से LNG कोटा केस में नैब की जानिब से तहकीकात जारी हैं। नैब के मुताबिक साबिक दौरे हुकूमत में LNG की खरीदारी से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान पहुंचाया। ज़राई माहिरीन का कहना है कि हालिया होने वाली बारिशें गंदम की फसल के लिए नुकसान का बाइस हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यून साजिद खान डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खालिद महमूद के साथ मौजूद हैं, हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी साजिद, आप बताइएगा अभी तक डिटेल्स क्या हैं, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश और ज़ालाबारी के बायस जो है फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है और जिसके बायस फैसलाबाद क्योंकि ज़रई सनती शहर के होने के साथ साथ ज़रई इलाका भी वसी पैमाने पे, जिसके बायस यहाँ पे किसान जो है परेशानी में मुब्तला हो गए। मेरे साथ ज़रई माहिर खालिद महमूद साहब डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से क्या नुकसान हुए हैं फसलों को। जी बताइएगा। जी, गुज़श्ता रोज़ बारिश की वजह से गंदम की फसल जो है वो गिर गई है और जिससे गंदम के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में इजाफा हो गया है और फार्मर्स जो हैं गहाई और कटाई के अमल में उनको दुश्वारी का सामना है। और जिन इलाकों में ज़ालाबारी हुई है वहाँ फसल की हेड इंजरी हुई है और हेड इंजरी की वजह से जो छिट्टा है वो दरमियान से टूट गया है और ज़मींदारों की पैदावार में कमी वाक़या होगी। और इसी तरह कपास की फसल जो है वो चूँकि कटाई का अमल लेट हो गया है बारिशों की वजह से। एक हफ़्ता पिछले साल ये हमारा कटाई का अमल जो है वो 15 अप्रैल से शुरू हो गया था, लेकिन अब ये मज़ीद एक हफ़्ता डिले हो जाएगा, जिससे हमारी जो आइंदा फसल हमारी जो स्ट्रेटेजिक क्रॉप है कपास, उसकी बिजाई का अमल भी मुतासर होगा और जो गंदम की पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से गंदम की फी एकड़ पैदावार में भी कमी हो सकती है। जी बिल्कुल,
आपने ज़रा माहिरीन का बात सुनी कि उनका कहना है कि गंदम की जो फसल है उसकी हेड इंजरी हो रही है, जिसके बायस जो है किसान को शदीद परेशानी का सामना है। इसके साथ साथ जो कपास की फसल है वो उसको भी क्योंकि बिजाई की जा रही है, उसका भी पौधा जो बाहर आ रहा है उसको भी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा दीगर जो फसलें हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो ज़ाला बारी है वो फसलों को बुरी तरह जो नुकसान पहुँचाती है, जिसकी वजह से किसानों को वो अपने मज़ीद मशवरे भी देते रहते हैं जिससे वो बचा जा सके, ताकि फसल को किस तरह बचाया जा सके ना हो। बहुत शुक्रिया आपका साजिद, आपने अभी तक की तफसीलात से हमें आगाह किया। रुख करते हैं लोयरदीर का, जहां पर गुज़िश्ता 2 दिनों से वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से दरियाए पंचगोड़ा में पानी के बहाव में इजाफा हो चुका है। इस वक्त दरियाए पंचगोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब है। मज़ीद तफसीलात जान लेते नुमाइंदा न्यूज़ नवाब बादशाह से। जी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मरगरा में दरियाई पंचगोड़ा के किनारे में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता 2 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई सर्द है। ठंडी हवाएं भी चल रही है और जाती सर्दी को ब्रेक लग गई है, जाती सर्दी वापस लौट आई है। जबकि बालाई इलाकों पर शदीद बारिश की वजह से बर्फ पिघलने से दरियाई पंचगोड़ा में पानी की बहाव में काफी हद तक इजाफा हुआ है। पानी की जो लहरें हैं वो हिफाजती पुश्तों से टकरा रहे हैं। दरियाई पंचगोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दूसरी तरफ मौसमी बहार अपनी जुबान पर है, फूल पत्ते खिले हैं, हर तरफ हरियाली है। लेकिन गुज़श्ता रात को शदीद आंधी और तूफान के साथ साथ जलाबारी भी हुई है, जिसकी वजह से न सिर्फ खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंची है, बल्कि मकानात के छत जो है उसको भी नुकसान पहुंची है और खेतों में पानी जो है वो खड़ा है। जी, इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां पर 2 रोज से बादलों का राज बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसम का अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा न्यूज़ आमना अलपयाल। जी आमना। इस्लामाबाद के मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम काफ़ी खुशगवार है। आज सुबह से ही जो है मतलब अब्र आलूद है, बादल किसी भी वक्त बरसने को तैयार है। इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के दरमियान जो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इन बारिशों के बायस गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी कमी हुई है और इस्लामाबाद की जो ग्रीनरी है और दरख्त और फूल जो हैं वो भी खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहे हैं। दूसरी जानब मारगला की पहाड़ियाँ भी एक हसीन और दिलकश मनाजिर पेश करती हैं ऐसे मौसम में, और इस वक्त भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की अगर बात कर ली जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान है और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री तक है। जी, तब्दीली की वजह से बारिशों का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मौसम बहार की आमद के साथ पोलन के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मरीजों के लिए पोलन एनर्जी कैंप भी लगाए जाते हैं। पोलन एनर्जी से मुतासरा 200 से ज्यादा शहरियों का रोजाना की बुनियाद पर इलाज किया जाता है। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब। जी बिल्कुल, मौसम बहार की आमद के साथ ही जहां पोलन एलर्जी के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो जाता है। अगर बात की जाए, अभी हम G6 के पोलन एलर्जी कैंप में मौजूद हैं जो हर साल लगाया जाता है और 15 दिनों के लिए ये कैंप लगाया जाता है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपना इलाज भी करवाते हैं। अगर बात की जाए यहाँ के कैंप की तो यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 के लगभग रोज़ाना की तादाद में मरीज़ यहाँ पर आते हैं अपने इलाज के लिए। इसके साथ साथ बहार की आमद जैसे ही शुरू होती है तो पोलन के मरीज़ों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो जाता है, लेकिन जो वक्त गुजरता जाता है इसके मरीज़ भी कम हो जाते हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ तरीके से जो है वो पोलन काउंट की जाती है, इसलिए डॉक्टर्स जो हैं वो सुबह और रात के औकात में जो पोलन के मरीज़ हैं उनको एहतियाती तदाबीर का भी मशवरा देते हैं कि मास्क पहन के निकलें। इसके साथ साथ जितने भी पौधे या दरख्त हैं उनके पास से ना गुजरें। अगर बात की जाए कैंप की तो कैंप में अभी भी जो है वो काफ़ी तादाद में मरीज़ जो हैं आ रहे हैं। यहाँ की जो इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि तकरीबन 150 से 200 तक मरीज़ यहाँ पर रोज़ आते हैं। 15 दिन के लिए कैंप लगाया जाता है। आज इस कैंप का आखिरी दिन है, इसके बावजूद भी यहाँ पर पोलन के मरीजों की जो है वो काफ़ी तादाद है, जबकि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये कैंप जो है लगाया जाता है उससे उनको भी काफ़ी सहूलत होती है और मरीजों की जो मुश्किल होती है वो भी काफ़ी इससे आसान हो जाती है। जी, खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद न्यूज़ के साथ रहिए। काम पहली बार में सही होना चाहिए। वेलकम बैक। तनख्वाहें दो, इस्लामाबाद में एमसीआई के सेंट्री वर्कर्स का सीडी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। मुजाहिदीन का कहना है कि जब तक तनख्वाह नहीं मिल जाती एहतजाज जारी रखेंगे। इंतजामिया की जानिब से हेडक्वार्टर के दोनों गेट बंद करके मुकामी पुलिस को तलब कर लिया गया है। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलें कि इस्लामाबाद एमसीआई के सेंट्री वर्कर्स ने एहतजाज शुरू कर रखा है। आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। आयशा शुएब, बताइएगा इस एहतजाज का अहवाल क्या है?
جی بالکل، دیکھیے کافی روز سے یہ MCI کے سینٹری ورکروں کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے. مختلف جگہوں پہ انہوں نے احتجاج کیا. پچھلے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے فیض آباد میں بھی اپنا دھرنا دیا. آج بھی ان کا CDA ہیڈ کوارٹر کے باہر جو مظاہرہ ہے وہ جاری ہے. جتنے بھی مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی نہیں ہو جاتی، ان کی عدم ادائیگیوں کی وجہ سے ان کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے، تنخواہیں نہیں مل جاتی، تب تک ان کا یہ احتجاج جاری رہے گا. جتنے بھی مظاہرین ہیں انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پمفلٹس اٹھا رکھے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھائیں گے. اگر CDA ہیڈ کوارٹر کی بات کی جائے تو ہیڈ کوارٹر کے دونوں گیٹ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہ کافی زیادہ تعداد ہے ان سینٹری ملازمین کی، اور CDA نے مقامی پولیس کو بھی طلب کر لیا ہے. جی مقامی پولیس کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. عائشہ شعیب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا. اور سندھ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پرچہ آؤٹ ہونے کا سلسلہ نہ رک سکا. انٹر امتحانات میں دوسرے روز بھی پرچہ آؤٹ ہو گیا. بایولوجی کا پرچہ مقررہ وقت سے 30 منٹ پہلے سوشل میڈیا پر آ گیا. پرچے کے ساتھ حل شدہ جوابات بھی سوشل میڈیا پر موجود. آپ کو ایک دفعہ پھر یہاں پر بتائیں، سندھ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پرچہ آؤٹ ہونے کا سلسلہ نہ رک سکا. انٹر امتحانات میں دوسرے روز بھی پرچہ آؤٹ ہو گیا. بایولوجی کا پرچہ مقررہ وقت سے 30 منٹ پہلے سوشل میڈیا پر آ گیا. پرچے کے ساتھ حل شدہ جوابات بھی سوشل میڈیا پر موجود. کرتارپور راہداری پر پاک بھارت تکنیکی ماہرین کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے. ذرائع کے مطابق گردوارہ ڈیرہ بابا نانک تا کرتارپور صاحب شاہراہ کی تعمیر پر بات چیت متوقع ہے. پاکستانی وقت میں وزارت داخلہ، مذہبی امور کے حکام سمیت FIA، FW اور دیگر حکام بھی شامل ہوں گے. ذرائع کے مطابق گردوارہ ڈیرہ بابا نانک تک کرتارپور صاحب شاہراہ کی تعمیر پر بات چیت ہوگی. مذاکرات میں دونوں طرف سڑکوں کی اونچائی پر لمبائی چوڑائی سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے. مودی ووٹ کے لیے بالا کوٹ جیسا ڈرامہ رچا سکتے ہیں. سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی نے خبردار کر دیا. کہتی ہیں کہ BJP نے پہلے سماج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد بالا کوٹ حملے کا ڈرامہ رچایا. اب ان کو الیکشن کے پہلے مرحلے میں اپنی شکست نظر آ رہی ہے. محبوبہ مفتی نے پلوامہ حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کر دیا. اور فرانس کے دارالحکومت پیرس میں آگ لگنے سے 800 سال قدیم نوٹر ڈیم چرچ جل گیا. آگ لگنے سے چرچ کا ایک مینار بھی گر گیا. 4 گھنٹوں کی محنت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا. فرانسیسی صدر وزیر اعظم نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. فرانسیسی صدر نے چرچ کو دوبارہ تعمیر کرانے کا اعلان کر دیا. وزیر خارجہ کا پیرس چرچ میں آتشزدگی پر اظہار افسوس. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پیرس کی تاریخی نوٹر ڈیم کیتھیڈرل میں خوفناک آتشزدگی پر دلی رنج اور دکھ کا اظہار.